ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਵਸਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਸਮੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜੋ ਵਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਵਸਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਮੀਨੋ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਛੋਟੇ ਅਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, 3 ਵੱਡੇ ਅਣੂ ਹਨ: ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਵਸਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਟੁੱਟੇਗਾ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਸਾ ਟੁੱਟੇਗੀ ਵਸਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਮੀਨੋ ਅਮਲ ਜਾਂ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ MCQ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਹੈ, ਫੈਟ ਦਾ ਜੋ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਫੈਟ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੈਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋਇਆ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਚਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੀਆਂ, ਫੈਟ ਔਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ
ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ और ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ यानी कि जो पूर्ण पाचन ਹੁੰਦਾ है वो कित्थे ਹੁੰਦਾ है? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, आई होप ये भी पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ कवर अप होए। फैट का पाचन देखिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखिया माउथ, प्रोटीन का पाचन आप देखिया स्टमक दे विच। फूड जो आप खाते हाँ वो ज़्यादा समा कित्थे रहिंदा है? अपने स्टमक दे विच रहिंदा है। और जो फूड है उसका पूरी तरह पाचन यानी कि जदों वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है उस तो पहले का जिन्ना भी टोटल पाचन है वो कित्थे हुंदा है? तो समोल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत दे विच हुंदा है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं कवर अप हो चुकियां हन। हुण इस तो बाद स्टूडेंट आपां देखदे हाँ ह्यूमन डाइजैसटिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजैसटिव सिस्टम नूं पंजाबी दे विच बोलिया जाता है मनुखी पाचन प्रणाली। तो देखो स्टूडेंट, डाइजैसटिव सिस्टम दे विच आपां मनुखी पाचन प्रणाली नूं कवर अप करांगे। हाँ जी, हुण स्टूडेंट मनुखी पाचन प्रणाली या ह्यूमन डाइजैसटिव सिस्टम नूं आपां दो पार्ट दे विच डिवाइड करिया। सब तो फर्स्ट पार्ट है जी एलीमेंट्री कनाल या इसनूं ही बोलिया जाता है डाइजैसटिव कनाल। पंजाबी दे विच इसदा नाम है जी पाचन नली। और सैकेंड असैसरी ऑर्गन या इन्हां नूं ही बोलिया जाता है सहायक अंग। स्टूडेंट घबराना नहीं है, एक एक चीज़ तुहानूं कवर अप करवाई जाएगी। हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट आपां पढ़ रहे हाँ ह्यूमन डाइजैसटिव सिस्टम। इसनूं आपां दो पार्ट दे विच डिवाइड करिया। पहला पार्ट देखिया आपां पाचन नली और दूसरा पार्ट देखिया सहायक अंग। हाँ जी, हुण देखो जी, अगर आपां गल करते हाँ पाचन नली या डाइजैसटिव कनाल दी, तो इसकी लेंथ काफ़ी एग्जाम दे विच पूछी जाती है। तो इसकी जो लेंथ हुंदी है, लंबाई हुंदी है, कितनी हुंदी है? तो 33 फीट यानी कि 33 फुट लंबी पाचन नली हुंदी है। हाँ जी, इस तो बाद फूड का जो पाचन हुंदा है वो कित्थे हुंदा है? तो फूड का जो टोटल पाचन हुंदा है वो कित्थे होएगा? पाचन नली दे विच होएगा। हुण एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है, जदों भी आपां फूड खांदे हाँ, हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे नाल सुनना है। जदों भी आपां फूड खांदे हाँ वो फूड कित्थे चलिया जाता है? तो वो चलिया जाता है पाचन नली दे अंदर। और जदों वो फूड वेस्टेज प्रोडक्ट बन के अपनी रैक्टम दे थ्रू यानी कि मल त्याग दे थ्रू अपनी बॉडी तो एग्जिट हुंदा है, उदों तक वो कित्थे रहेगा? पाचन नली दे अंदर रहेगा यानी कि डाइजैसटिव कनाल दे अंदर रहेगा, जिसकी आपां लेंथ देखी 33 फीट। और फूड का पाचन भी कित्थे होया? तो पाचन नली दे विच होया। हाँ जी स्टूडेंट, हुण अगर आप गल करिए पाचन नली कित्थों लैके कित्थों तक है, तो देखो स्टूडेंट अपने माउथ तो लैके रैक्टम तक। हाँ जी, इसनूं आपां 1 बाय 1 एक एक चीज़ नूं कवर अप करांगे। हाँ जी, देखो स्टूडेंट अगर आपां गल करते हाँ एलीमेंट्री कैनाल दी, इसकी आपां लेंथ देखी 33 फीट। बट इस दे विच भी जो सब तो लंबी हुंदी है उसका नाम की है जी? उसका नाम है छोटी आंदर या फिर आप इसनूं बोलते हाँ समोल इंटेस्टाइन। इसकी टोटल लेंथ कितनी हुंदी है? तो 6 तो 7 मीटर या फिर 22 फीट। स्टूडेंट एग्जाम दे विच इन्हां तो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। हुण देखो जी, 2 क्वेश्चन बने अपने। सब तो पहला क्वेश्चन कि पाचन नली की जो लेंथ है कितनी है? तो टोटल पाचन नली की लेंथ है 33 फीट। और पाचन नली दे विच भी सब तो लंबी की हुंदी है? तो आप देखिया छोटी आंदर। और छोटी आंदर की टोटल लेंथ कितनी है? मीटर दे विच गल करते हाँ तो 6 तो 7 मीटर और फुट दे विच गल करते हाँ तो 22 फुट। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं कवर अप हुई। स्टूडेंट हुण इत्थे मैं एक नोट करके एक पॉइंट लिखिया है। हाँ जी, तो वो की है जी? जदों भोजन का पाचन इस विच हुंदा है, इस विच दा मतलब जी पाचन नली दे विच हुंदा है,
ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫੂਡ ਦਾ ਪਾਚਨ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਨ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਇਨ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, यानी कि पाचन दे विच की करना, मदद करना। आई होप ये चीज़ तुहानू कवर अप हो चुकी होएगी। दो चीज़ां तुसी याद रखनियां हन, पाचन नली का काम की हुंदा है, जो फूड है उसका पाचन करना, और सहायक अंग नाम दे विच ही सहायक लग्या होया है तो ये की करनगे, पाचन दे विच हैल्प करनगे, यानी कि हैल्प इन डाइजेशन। हुण आपां वन बाय वन सहायक अंग यानी कि असैसरी ऑर्गन देख लैंदे हां। सब तो पहले है जी टीथ, टीथ यानी कि दंद। हाँ जी, सैकेंड है जी टंग यानी कि जीभ। थर्ड है जी सलैवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। फोर्थ गल करते हैं जिगर, जिगर यानी कि लीवर। फिफ्थ है जी पैनक्रिया जिसनों बोलिया जाता है अग्नाशय। और सिक्स है जी गोल ब्लैडर जिसनों बोलिया जाता है पित्ता। घबराना नहीं है, एक एक चीज़ तुहानू बहुत ही वधिया तरीके दे नाल समझाई जाएगी, जस्ट तुसी वीडियो नू पूरा देखना है। हाँ जी स्टूडेंट, देखो आपां देखिया मनुखी पाचन प्रणाली दो पार्ट दे विच डिवाइड है, पाचन नली और सहायक अंग। पाचन नली दे विच की हुंदा है, फूड दा पाचन हुंदा है, और सहायक अंग की करते हैं, फूड दे पाचन दे विच हैल्प करते हैं। हाँ जी, आपां देखिया सहायक अंग किहड़े-किहड़े हन, तो सब तो पहले है जी टीथ, फिर है टंग, दैन सलैवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रिया और गोल ब्लैडर। पंजाबी वाले स्टूडेंट पंजाबी दे विच नाम देख सकते हैं। मैं तुहानू एडवाइस देंगा कि तुसी ज़्यादा इंग्लिश नू प्रैफर करो, क्योंकि तुहाडा कोई भी एग्जाम है उस दे विच इंग्लिश लैंग्वेज आएगी ही आएगी, और इंग्लिश दे विच याद रखना ईजी है। जिथे पंजाबी की ज़्यादा जरूरत पएगी उत्थे मैं पंजाबी वर्ड भी यूज़ करूँगा। हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां देखिया पाचन नली माउथ तो लैके कित्थे तक है, रैक्टम तक है। हुण कई बार एग्जाम दे विच एक सीरीज़ पूछी जाती है। हाँ जी, हुण सीरीज़ की आएगी, देखो जी अपने जो खाना है, खाने का पाचन कितों स्टार्ट होया, तो माउथ यानी कि मुँह तो स्टार्ट होया। दैन अपना खाना कित्थे जाएगा, फेरिंग्स यानी कि ग्रसिका दे विच जाएगा। उस तो बाद हाँ जी एसोफेगस यानी कि आहार नली। दैन खाना कित्थे जाएगा, स्टमक यानी कि पेट दे विच जाएगा। उस तो बाद समॉल इंटेस्टाइन या फिर जिसनों आप छोटी आंदर बोलते हैं, और लास्ट दे विच खाना कित्थे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन जिसनों वड्डी आंदर बोलिया जाता है। एक बार रिपीट करते हैं, देखो जी खाने का पाचन सब तो पहले कित्थे हुंदा है, तो अपने माउथ दे विच होएगा। दैन खाना कित्थे जाएगा, ग्रसिका दे विच जाएगा। उस तो बाद आहार नली, दैन खाना जाएगा पेट दे विच। उस तो बाद छोटी आंदर, और बाद दे विच की है वड्डी आंदर दे विच जाएगा, और वड्डी आंदर दे विच जाके रैक्टम दे थ्रू खाना की है अपनी बॉडी तो एग्जिट हो जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट, तो हुण आपां देखो जी सब तो पहले देखिया माउथ। हुण आपां माउथ नूं पूरी तरह एक्सप्लेन करांगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट माउथ दे अंदर की हाँ जी तीन चीज़ां हुंदियां हन, तीन सहायक अंग हुंदे हन। किहड़े-किहड़े, सब तो पहला है जी टीथ यानी कि दंद, सैकेंड है टंग यानी कि जिभ, और थर्ड है जी सलैवरी ग्लैंड जिसनों बोलिया जाता है लार ग्रंथियाँ। हाँ जी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने माउथ दे विच किन्ने सहायक अंग पाए जाते हैं, तो तीन हन। किहड़े-किहड़े, टीथ यानी कि दंद, टंग यानी कि जीभ, सलैवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियाँ। हुण आपां वन बाय वन इन्हां तो जिन्ने भी एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपां देखते हैं। सब तो पहला अगर आपां टीथ की गल करते हैं तो स्टूडेंट टीथ दो टाइप के होंदे हैं। सब तो पहला है जी मिल्क टीथ यानी कि दुध वाले दंद, और सैकेंड हाँ जी परमानेंट टीथ जो कि हाँ जी स्थाई दंद होंदे हैं। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की आएगा कि जो मिल्क टीथ है, पहला मिल्क टीथ किन्ने उम्र दे विच आंदा है, तो 6 मंथ 6 महीनों की एज दे विच पहला मिल्क टीथ आएगा, और जो पहला परमानेंट टीथ हुंदा है ये 6 ईयर की एज विच आएगा। हुण स्टूडेंट
टीथ तो काफ़ी इंपोर्टेंट पॉइंट जो तुसी याद रखने हैं। अपने जो टीथ होंदे हन किन्नी टाइप दे होंदे हन, तो अपने टीथ होंदे हन 4 टाइप दे। हाँ जी, केड़ी टाइप है? सब तो पहली टाइप है इनसाइजर, सैकेंड है जी कैनाइन, थर्ड है प्री मोलर और फोर्थ है जी मोलर। स्टूडेंट PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 24/7 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ 10 ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, और अगर असी मोटिवेट होंदे हाँ तो तुहाडे लई ही असी बेस्ट तो बेस्ट डाटा प्रोवाइड करन दी कोशिश करांगे। हाँ जी, आपां देखिया टीथ किन्नी टाइप दे हन? 4 टाइप दे। केड़े? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। हुण देखो स्टूडेंट, जो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आएगा, इंसीजर दा काम की हुंदा है? खाने नूं कटना। कैनाइन दा काम हुंदा है खाने नूं चीरना और फाड़ना। प्री मोलर का काम हुंदा है चबाना और पीसना, और मोलर का काम भी की हुंदा है खाने नूं चबाना और पीसना। लास्ट ईयर एग्जाम दे विच काफ़ी क्वेश्चन किस तरह बने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की आएगा, खाने नूं कट्टन दे लई किस दंद का प्रयोग करया जांदा है? अपना आंसर की होएगा जी? अपना आंसर होएगा इनसाइजर का। खाने नूं चीरन या फाड़न दे लई किस टीथ का प्रयोग करया जाता है? तो अपना आंसर होएगा कैनाइन। नाम याद करने वेरी इजी। हुण स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डेंटल फॉर्मूले तो। डेंटल फॉर्मूला की है जी? तो डेंटल फार्मूला है ICPM। हाँ जी, ICPM का मतलब की है? I तो हो जाएगा इंसाइजर, C तो हो जाएगा कैनाइन, P तो हो जाएगा प्री मोलर और M तो हो जाएगा मोलर। हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट, अगर आप गल करते हाँ, ये जो फर्स्ट टेबल बनया होया है इस दे विच की हैं जी? जो मिल्क वाले टीथ हैं, और सैकेंड कॉलम दे विच की है जी? जो परमानेंट टीथ हैं, जो पक्के टीथ होंदे हैं। अगर आप बच्चे की गल करते हैं तो बच्चे दे विच जो मिल्क टीथ होंदे हैं उन्हां दी गिनती कितनी होंदी है? तो इस दे लई एक फॉर्मूला तुसीं याद रखना है। वो फॉर्मूला की है जी? तो वो है जी 2102। हाँ जी, और जो परमानेंट टीथ है उस दे विच फॉर्मूला की हो जाएगा 2123। डिफरेंस देखो की है जी? इस दे विच जो प्री मोलर हैं वो 0 है, और जो परमानेंट टीथ हैं इस दे विच जो प्री मोलर है वो कितने हैं जी? 2 हैं। मिल्क वाले टीथ दे विच मोलर 2 हैं और परमानेंट दे विच मोलर कितने हैं जी? 3 हैं। हुण देखो जी, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की आएगा कि जो मिल्क वाले टीथ होंदे हैं वो किन्ने होंदे हैं? तो आप इत्थों निकाल सकते हैं। इस दे विच कितना है जी? 2 और 1 3 और 2 5। 5 नूं अगर आप 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपना आंसर आएगा जी 20। और 20 की होंदे हैं जी? जो दुध वाले दंद होंदे हैं, मिल्क टीथ होंदे हैं, उन्हां दी गिनती कितनी होंदी है? तो उन्हां दी गिनती होंदी है B। नैक्सट है जी परमानेंट टीथ किन्ने होंदे हैं? तो 2 और 1 3 ते 2 5 और 3 8। 8 नूं अगर आप 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपना आंसर आएगा जी 32। आई होप मैथ सारिਆਂ ने करया होएगा। तो जो एक वयस्क हुंदा है, जो परमानेंट टीथ हुंदे हैं वो किन्ने हुंदे हैं? 32, और मिल्क वाले टीथ 20। स्टूडेंट ये चीज़ां स्टूडेंट काफ़ी स्किप कर जाते हैं, बट देखो इन्हां तो किन्ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की आएगा कि जो दुध वाले दंद दे विच या मिल्क टीथ दे विच किहड़ी दंदां दी टाइप नहीं पाई जाती? तो देखो जी, जो प्री मोलर है, प्री मोलर मिल्क वाले टीथ दे विच नहीं हुंदा। और जो क्वेश्चन आएगा कि जो परमानेंट टीथ हैं उन्हां दे विच प्री मोलर टीथ किन्ने हुंदे हैं? तो देखो स्टूडेंट, इत्थे हैं 2, 2 नूं आपां 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आएगा? 8। तो प्री मोलर टीथ किन्ने हैं? 8। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परमानेंट टीथ दे विच जो कैनाइन जो टाइप है दंदां दी, टोटल कैनाइन किन्ने हुंदे हैं? तो 1 नूं आपां 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो टोटल कितना आएगा? 4। हाँ जी स्टूडेंट, आप इत्थे 4 नाल मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने जो 2 जबड़े होंदे हैं उसनूं आपां 2 पार्ट दे विच डिवाइड करिया, ठीक है जी, इसलिए आप इसनूं 4 दे नाल डिवाइड कर रहे हैं।
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸਾਈਜ਼ਰ ਦਾ। ਇਨਸਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਟ ਹੈ, ਚੂਹਾ ਹੈ, ਕੁਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਨਸਾਈਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਤਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਈਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਟੀਥ ਹੈ, ਟੀਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਾਈਮਲ ਦੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਈਮਲ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਈਮਲ, ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੰਗ ਹੈ। ਟੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਜੀ, 4 ਟੈਸਟ ਬਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਸਵਾਦ ਕਲਿਕਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਟੇਸਟ ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੰਗ ਹੈ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਮਕੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਟ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਟਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਵਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਭ ਦੇ ਜਾਂ ਟੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੈ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਹੈ, ਟੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਵੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਚ ਕੌੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੌੜਾ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਥਰਡ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ 6। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, 6 ਹਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 3। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਲਾਈਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਈਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕ੍ਰੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲੈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 6, ਔਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 3। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਲਾਈਵਾ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਲੀਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਐਸਿਟਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ pH ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6.8। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ pH ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 7 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਿਟਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 7 ਤੋਂ 14 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਰ ਹੋਏਗਾ।
और अगर पूरी 7 है तो वो की होएगा जी न्यूट्रल यानी कि उदासीन होएगा। जो सलाइवा है इसकी pH वैल्यू 6.8 है तो थोड़ा थोड़ा एसिटिक यानी कि तेजाबी होंदा है। हुण जो अपनी बॉडी दे विच 1.5 लीटर सलाइवा पर डे निकलता है, इसका काम की हुंदा है तो इसका काम हुंदा है जी फूड नूं मुलायम बनाना। हाँ जी, फूड नूं मुलायम बनाने का काम कौन करता है? दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम दे विच बहुत बार पूछा गया है। तो फूड नूं मुलायम बनाना सलाइवा यानी कि लार का काम होंदा है। हुण देखो जी इस लार दे विच 2 तरह के एंजाइम भी पाए जाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एक चीज़ जो एंजाइम के बारे मैं तुहानूं दसनी चाहांगा। हाँ जी देखो जी अपने बॉडी दे विच काफ़ी सारियां बोल सकते हाँ आप ग्रंथियां पाइया जांदियां हन। वो ग्रंथियां की हन जी बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन करदियां हन और वो वाले एंजाइम की करते हैं अपने खाने नूं पचाउण दे विच अपनी हैल्प करते हैं। इस तरह ही सलाइवा यानी कि लार दे विच की हुंदे हन 2 एंजाइम हुंदे हन। सब तो पहला है जी टाइलिन एंजाइम, पंजाबी दे विच भी नाम सेम ही होएगा। हाँ जी टाइलिन एंजाइम का काम की हुंदा है? जो अपना खाना है खाने दे विच जो स्टार्च हुंदा है, स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करन दा काम कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। हुण स्टार्च किसकी फॉर्म है? तो स्टार्च देखो जी कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप हुंदा है। अगर तुसी कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक देखा है तो इस चीज़ के विच तुहानूं कोई भी डाउट नहीं होएगा। हाँ जी स्टार्च की हुंदा है स्टूडेंट? तो स्टार्च जो प्लांट हुंदे हन अपना खाना किस फॉर्म दे विच बनाते हैं? तो स्टार्च की फॉर्म दे विच बनाते हैं। हाँ जी हुण देखो स्टूडेंट सैकेंड जो एंजाइम आप पढ़ांगे वो है जी लाइजोजोम। हाँ जी लाइजोजोम का काम की हुंदा है? फूड दे विच बैक्टीरिया नष्ट करना। देखो स्टूडेंट आप जो भी खाना खाते हाँ उस दे विच बहुत सारे बैक्टीरिया होंदे हैं। तो वो बैक्टीरिया खाने दे नाल अपने पेट दे विच ना जान तो इसलिए सलाइवा दे विच एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइजोजोम। इसका काम की हुंदा है? फूड दे विच जिन्ने भी बैक्टीरिया होंदे हैं उन्होंने की है माउथ दे विच ही नष्ट कर दिंदा है। इसलिए की है आपां नूं ज़्यादा बीमारियां नहीं होंदियां। इसलिए एक क्वेश्चन आता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम किसनूं कहा जाता है? तो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम बोलिया जाता है लाइजोजोम। आई होप इत्थों तक तुहानूं क्लीयर हो चुका है। स्टूडेंट अगर तुहानूं ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसनूं लाइक करो और ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों नूं शेयर करो। हाँ जी इस तो बाद देखो जी नैक्सट स्लाइड तुहाडे सामने है जी। हाँ जी इस स्लाइड दे विच की है जी, देखो आप माउथ कर चुके हैं। माउथ तो बाद खाना कित्थे जाएगा? तो माउथ तो बाद खाना जाएगा फ्राई नैक्स दे विच। फ्राई नैक्स नूं की बोलिया जाता है? फ्राई नैक्स नूं बोलिया जाता है ग्रसिका। की बोलिया जाएगा? ग्रसिका बोलिया जाएगा। हाँ जी हुण देखो जी ये वाली इमेज तुहानूं समझनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम दे विच इत्थों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये वाली इमेज मैं तुहाडे लिए सिंपल बनाई है। देखो जी सब तो ऊपर की है जी अपना नोज़ है, उस तो नीचे की हुंदा है जी माउथ हुंदा है। हुण देखो स्टूडेंट नोज़ और माउथ का जो पाइप हुंदी है वो की एक कॉमन पाइप हुंदी है। एक कॉमन पाइप बाद दे विच की है जी 2 पार्ट दे विच डिवाइड हो जाती है। एक पाइप जाएगी लंग्स वाली साइड जिसनों की बोलिया जाता है फेफड़े। हाँ जी और दूसरी पाइप किधर जाएगी? स्टमक यानी कि अपने पेट वाल जाएगी। हाँ जी हुण देखो स्टूडेंट फ्राई नैक्स कित्थे हुंदा है? तो फ्राई नैक्स हुंदा है जिथों एक पाइप 2 पार्ट दे विच डिवाइड हुंदी है। इस पार्ट नूं बोलिया जाता है फ्राई नैक्स। हुण देखते हाँ जी फ्राई नैक्स तो एक जो पाइप है 2 पार्ट दे विच डिवाइड हुई। किहड़े पार्ट दे विच? एक पार्ट है जी फूड पाइप जिसनूं ओसोफिगस कहा जाता है या फिर आहार नली बोलिया जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है एग्जाम दे विच काफ़ी पूछी जाती है 3.27 सेंटीमीटर। हाँ जी फूड पाइप या आहार नली की आपां लेंथ देखी। हाँ जी हुण इसका काम भी देख लेंदे हाँ। फूड पाइप का काम की हुंदा है? तो फूड नूं माउथ तो स्टमक यानी कि पेट तक लैके जाना। हाँ जी हुण सैकेंड जो पाइप है इसका नाम हुंदा है जी विंड पाइप
ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹ ਨਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਨਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਏਅਰ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋਜ਼ ਔਰ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ, ਸਾਹ ਨਲੀ ਔਰ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਔਰ ਜੋ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਔਰ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਾਈਨੈਕਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੱਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਢੱਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਟ ਜੋ ਸਾਹ ਹੈ, ਸਾਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਈਪ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਜੋ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਨਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਢੱਕਣ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਕੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਟਰੈਕੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਐਪੀਗਲੋਟਸ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਓਗੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਈਨੈਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਲੈਂਥਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਨਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਸੀ? ਤਾਂ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 33 ਫੀਟ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਸੀ 22 ਫੀਟ। ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀ ਸਟਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਸਟੂडेंट देखो जी, जो अपना पेट हुंदा है, हाँ जी, ਹੁਣ पेट तो किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सब तो पहले की है जी, जो अपना पेट हुंदा है ये किस दा सिक्रेशन करता है, की निकालता है। तो पेट दे विच एक जूस हुंदा है जिसनों बोलिया जाता है गैस्ट्रिक जूस, या पंजाबी दे विच इसनों बोलिया जाएगा जठर रस। दैट इज़ वेरी फेमस नेम, जठर रस सारिਆਂ ने सुनिया होएगा। जठर रस का इंग्लिश नेम की है गैस्ट्रिक जूस। हाँ जी, इसकी जो पीएच वैल्यू होंगी है कितनी होंगी है, तो 1.5, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रोंग एसिड होंदा है। हाँ जी, और कई बार एग्जाम दे विच इसका कलर भी पूछा जाता है, तो इसका कलर है जी येलो। जो गैस्ट्रिक जूस है इसका कलर किहड़ा हुंदा है, आपां देखिया पीला। और किस नेचर का हुंदा है ये भी एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1.5 अगर पीएच वैल्यू है तो की होएगा, एक स्ट्रोंग एसिड होएगा। इस तो पहला भी आपां एक पीएच वैल्यू देखी सी। हाँ जी, तो वो आपां किस दी पीएच वैल्यू देखी सी, सलाइवा दी, जिस दी पीएच वैल्यू सी 6.8, जो कि एक नॉर्मल एसिटिक एसिड सी। हाँ जी, हुण देखो जी, स्टमक ने की निकालिया, गैस्ट्रिक जूस निकालिया। और इस गैस्ट्रिक जूस दे विच की हैं जी, सब तो पहला आपां देखते हाँ कुछ एंजाइम हुंदे हैं। एक है जी पैप्सिन एंजाइम, सैकेंड हुंदा है जी रेनिन एंजाइम, थर्ड हुंदा है HCl, और फोर्थ जो अपने पेट दे विच मौजूद हुंदा है वाटर। क्वेश्चन की आएगा स्टूडेंट कि जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, किस दे द्वारा निकालिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी स्टमक के द्वारा। स्टमक के द्वारा जो गैस्ट्रिक जूस निकालिया जाता है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होंदी है, 1.5। गैस्ट्रिक जूस का जो कलर हुंदा है किहड़ा, येलो। तो MCQ क्वेश्चन की टेंशन नहीं लैनी है, तुहाडे आटोमैटिक ही कवर हो रहे हैं। जस्ट कंसैप्ट तुहाडे माइंड दे विच एक ही चीज़ होनी चाहिए है, वो की है जी कंसैप्ट कंसैप्ट कंसैप्ट। और उस कंसैप्ट नूं क्लीयर करे बिना MCQ क्वेश्चन तुसी कदे भी रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकते। हाँ जी, तो एग्जाम क्लीयर करने लिए सब तो इंपोर्टेंट चीज़ की है जी, कंसैप्ट क्लीयर होना। हाँ जी, हुण देखो जी, आपां देखिया गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक द्वारा निकालिया गया, इस दे विच की हुंदा है पैप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, HCl, और इस तो इलावा अपने पेट के की होंदा है वाटर। हुण आपां इन्हां दे काम देख लैंदे हां। सब तो पहले है जी, जो पैप्सिन एंजाइम हुंदा है इसका काम की हुंदा है, तो इसका काम हुंदा है प्रोटीन का पाचन करना। हाँ जी, प्रोटीन का पाचन अपने पेट दे विच किस दे द्वारा कराया जाता है, तो पैप्सिन एंजाइम के द्वारा कराया जाता है। और प्रोटीन नूं किस दे विच पैप्सिन एंजाइम तोड़ता है, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, ये तोड़ेगा पैपटाइड दे विच। स्टूडेंट अगर तुसी मेरा प्रोटीन वाला लैक्चर देखा है, तो उस दे विच आपां बहुत ही वधिया तरीके दे नाल देखिया कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन किस दे विच होएगा, पैपटाइड दे विच होएगा। पैपटाइड का पाचन पैप्टोन दे विच होएगा, और पैप्टोन का पाचन अमीनो एसिड दे विच होएगा। बट इत्थे की है जी, अपने पेट दे विच जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन किस दे विच होएगा, पैप्टाइड दे विच होएगा। और कौन करेगा, तो पैप्सिन नामक एंजाइम करेगा। और एंजाइम किस दे विच पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस दे विच। और गैस्ट्रिक जूस किस दे द्वारा निकालिया जाता है, तो स्टमक के द्वारा। इस तो बाद देखो जी, गैस्ट्रिक जूस दे विच होर की पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो किसका पाचन करेगा, कैसिन नामक प्रोटीन का। किहड़े प्रोटीन का, कैसिन प्रोटीन। देखो स्टूडेंट, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर क्वेश्चन आए प्रोटीन का पाचन, तो पैप्टाइड दे विच कौन करेगा, पैप्सिन। बट अगर क्वेश्चन आए कैसिन प्रोटीन का पाचन, तो अपना आंसर होएगा जी रेनिन। बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की है, कैसिन प्रोटीन किस दे विच पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जी मिल्क दे विच। यानी कि दूध दे विच किस तरह का प्रोटीन होंदा है, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो ये पाया जाएगा जी मिल्क दे विच। थर्ड है जी HCl। गैस्ट्रिक जूस दे विच HCl का काम की हुंदा है। देखो स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, हाँ जी, कि जो पैप्सिन और रेनिन है उन्हां दे लई तेजाबी मीडियम या एसिटिक एसिड किस दे द्वारा तैयार कराया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी HCl। देखो पैप्सिन और रेनिन एंजाइम कदों काम करते हैं, जदों जो अपना गैस्ट्रिक जूस है उस दे विच किस दी मात्रा ज़्यादा होए, एसिड की मात्रा ज़्यादा होए, फिर ही पैप्सिन और रेनिन की करते हैं, अपना वर्क करते हैं। और
अपने गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू 1.5 है, इसनों 1.5 करन दे लई अपनी गैस्ट्रिक जूस दे विच की पाया जाता है HCl, और इसका आपां काम देखिया पैप्सिन अते रैनिन दे लई एसिटिक मीडियम नूं तैयार करना। आई होप एक एक चीज़ तुहानूं क्लीयर हो रही है। फिर भी अगर तुहाडा कोई डाउट है तो तुसीं वीडियो नूं दोबारा देख सकते हो। हुण अपने पेट दे विच वाटर यानी कि पानी का काम की हुंदा है, तो देखो जी जो HCl है, HCl का मतलब हुंदा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये की है जी एक स्ट्रोंग एसिड है, बहुत ही तेज़ तेजाब है। इसनों ज़्यादा स्ट्रोंग होने तो कौन रोकता है, तो वाटर रोकता है। क्वेश्चन की आएगा गैस्ट्रिक जूस दे विच या जो अपने स्टमक दे विच HCl पाया जाता है उसनों ज़्यादा स्ट्रोंग होने तो कौन रोकता है, तो जो अपने स्टमक दे विच वाटर मौजूद होंदा है उसके द्वारा रोकया जाता है। इस तो बाद स्टूडेंट नैक्सट जो पॉइंट तुसी याद रखना है, देखो जी एक डिजीज़ है जिस दे बारे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप गल करते हैं अपनी स्टमक की, तो देखो फॉर एग्जाम्पल एक ही है जी अपना एक स्टमक है, हाँ जी, और स्टमक दे विच की है जी एक स्टमक वॉल होंदी है। ये जो बाहर वाली ब्लू वाली लाइन है एक ही स्टमक वॉल है, और इस दे विच की है जी एक लेयर पाई जाती है। जो रेड वाली जो लाइन है एक लेयर है, और इस लेयर का नाम पूछा गया सी लास्ट टाइम SSC एग्जाम दे विच, इसका नाम है जी म्यूकस लेयर। दोनों चीज़ां तुसी देखिया, ब्लू वाली लाइन केड़ी है जी जो सर्कल बनया होया है स्टमक वॉल है, और जो रेड वाली लाइन है एक ही है जी एक लेयर है जिसका नाम की है म्यूकस लेयर। हाँ जी, इस म्यूकस लेयर का काम की हुंदा है, देखो जी अपने स्टमक दे विच एक तो गैस्ट्रिक जूस आपां देखिया, और गैस्ट्रिक जूस दे विच की हुंदा है HCl जो कि है एक स्ट्रोंग एसिड हुंदा है। अगर ये जो HCl है, ये जो HCl है एक ही है जो दीवार है स्टमक वॉल है इत्थों तक ना पहुँचे, इसलिए साडे स्टमक दे विच की पाई जाती है एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। इसका काम की हुंदा है HCl नूं स्टमक वॉल तक पहुँचण तो रोकता है। हुण क्वेश्चन की आएगा कि HCl नूं स्टमक वॉल तक पहुँचण तो कौन रोकता है, तो अपना आंसर होएगा जी म्यूकस लेयर रोकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूकस जो लेयर है, म्यूकस लेयर अगर HCl नूं रोकण दे विच कामयाब नहीं होंदी, और HCl की है जी स्टमक वॉल नूं टच कर दिंदा है, तो इस दे नाल एक डिजीज़ हुंदी है, और उस डिजीज़ का नाम अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है, तो उसका नाम है जी अल्सर डिजीज़। अल्सर दे विच की हुंदा है, तो देखो जो अपनी स्टमक वॉल हुंदी है इस दे विच की छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। हाँ जी, इस तो बाद स्टूडेंट नैक्सट अगर आप गल करते हाँ तो दैट इज़ वैरी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक तुहाडे सामने है। हाँ जी, हुण देखो जी आप गल करते हाँ समॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंदर की। हाँ जी, तो ये छोटी आंदर की होंदी है, देखो जी एक डायग्राम तुहाडे सामने बनी हुई है। इस डायग्राम नूं तुहाडे लई ईजी करया होया है, अदरवाइज अपने जो बॉडी है इसकी स्ट्रक्चर ऐदा नहीं है। हाँ जी, हुण देखो जी आप देखिया अपना जो स्टमक है, स्टमक दे विच खाना आया, खाना स्टमक तो कित्थे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच जाएगा। बट इस तो पहला कुछ ऑर्गन हैं जो आप देखने हैं। एक ही है जी अपना लीवर जिसनों आप जिगर बोलते हैं, अगे है जी गोल ब्लैडर जिसनों आप पित्ता बोलते हैं, और अगे है जी पैनक्रिया जिसनों अग्नाशय बोलते हैं। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट हुंदा की है, आप देखिया ज़्यादा टाइम खाना कित्थे रहिंदा है, अपने स्टमक यानी कि अपने पेट दे विच रहिंदा है। पेट तो खाना जदों ही छोटी आंत यानी कि समॉल इंटेस्टाइन दे विच एंटर होने लगता है, तो ये जो 3 अंग हैं एक ही हैं जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, जदों खाना स्टमक तो समॉल इंटेस्टाइन दे विच गया, तीनों ही जो ऑर्गन हैं लीवर, गोल ब्लैडर और पैनक्रिया तीनों ही की हैं जी एक्टिव हो जाते हैं। सब तो पहला लीवर नूं देख लेंदे हाँ जी। जो लीवर है, लीवर की करता है एक बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस जिसनों आपां पित्त रस बोलते हैं। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की आएगा बाइल जूस या फिर पित्त रस का निर्माण किस दे द्वारा कराया जाता है, तो अपना आंसर होएगा लीवर के द्वारा कराया जाता है। इसकी pH वैल्यू कितनी होंदी है, तो 7.7 होंदी है। हुण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपां याद रखना है, एक क्वेश्चन क्या आएगा किहड़े जूस दे विच एक भी एंजाइम नहीं हुंदा। हाँ जी, नो एंजाइम, तो वह है जी बाइल जूस। और दूसरा चीज़ की है जी फैट का पाचन किस दे द्वारा कराया जाता है, तो फैट का पाचन
ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲੀਵਰ। ਔਰ ਲੀਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਪਿੱਤ ਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੈ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤ ਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਦੇਖੇ। ਲੀਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪਿੱਤ ਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਨਾਸ਼ਯ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਨਾਸ਼ਯ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਸ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਨਾਸ਼ੀ ਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਗਨਾਸ਼ੀ ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਨਾਸ਼ਯ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਜੋ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਜੋ ਜੂਸ ਹਨ, ਔਰ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਨਾਸ਼ੀ ਰਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਪੇਜ਼, ਔਰ ਥਰਡ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਪੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਫੈਟ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਔਰ फैट और प्रोटीन का पाचन किस दे द्वारा होया, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन द्वारा। ये सारिया चीज़ां कित्थों आईयां तो आप देखिया पैनक्रियाटिक जूस तो इसलिए क्वेश्चन की आएगा पूर्ण पाचन रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसनों बोलिया जाता है, तो अपना आंसर होएगा जी पैनक्रियाटिक जूस नूं। आई होप ये चीज़ तुहानूं कवरअप हो चुकी है। हुण देखो जी, खाना स्टमक तो समॉल इंटेस्टाइन दे विच आया तो आप देखिए कि तीनों ही जो ऑर्गन हैं एक ही हैं एक्टिव हो गए, इन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट करता। हुण खाना की है जी, समॉल इंटेस्टाइन दे विच भी सब तो पहले कित्थे आंदा है, तो देखो जी इसके 3 पार्ट होंदे हैं। सब तो इंपोर्टेंट की है जी, समॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट के विच सब तो पहले खाना आया, तो अपना आंसर की है जी, अपना आंसर होएगा डूडेनम। हाँ जी, हुण देखो जी समॉल इंटेस्टाइन की आपां लेंथ देखी कितनी होंदी है जी, 6 तो 7 मीटर या फिर 22 फीट। एक चीज़ और इत्थे की हाँ जी, आपां 2 जूस पढ़े। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की आएगा कि जदों खाना समॉल इंटेस्टाइन दे विच आया तो सब तो पहला जूस केड़ा समॉल इंटेस्टाइन या खाने दे विच आके मिलिया, तो अपना आंसर होएगा जी सब तो पहला अग्नाशी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस खाने दे विच मिलता है। हाँ जी, इन्ना तक तुहानूं क्लीयर हो गया। हुण देखो जी, इत्थे आपां देखिया है बाइल जूस। बाइल जूस नूं आपां कवरअप करते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। बाइल जूस की अगर आपां गल करते हैं तो स्टूडेंट बाइल जूस दा जो सिक्रेशन है किस दे द्वारा कराया गया, आपां देखिया लीवर के द्वारा, और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होंदी है तो 7.7 होंदी है। एग्जाम दे विच कई बार बाइल जूस का कलर पूछा जाता है, तो इसका कलर किहड़ा होंदा है, ग्रीन येलो स्टिकी फ्लूइड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो स्टूडेंट, इत्थों तुहाडे काफ़ी क्वेश्चन मैं कवरअप करांगा, तो ध्यान दे नाल देखना है इस चीज़ नूं। बाइल जूस नूं आपां देखिया लीवर ने निकालिया, पीएच वैल्यू 7.7, और इसका कलर भी पूछा जाता है ग्रीन येलो स्टिकी फ्लूइड या फिर हरा पीला चिपचिपा द्रव होंदा है। हुण देखो स्टूडेंट, इस दे विच बाइल जूस का जो हरा रंग होंदा है वो होंदा है बिलीबर्डाइन दे करके। हाँ जी, किस दे करके, बिलीबर्डाइन दे करके। और पीला जो कलर होंदा है बिलीरुबिन दे करके होंदा है। और जो स्टिकी फ्लूइड होंदा है ये होंदा है जी कोलेस्ट्रॉल दे करके। एक चीज़ तुसी याद रखनी है स्टूडेंट। हाँ जी, एक क्वेश्चन की आएगा, अपनी बॉडी अपने ब्लड दे विच आरबीसी पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन की आंदा है आरबीसी के नष्ट होने नाल अपनी बॉडी विच की बनेगा, तो अपनी बॉडी दे विच बनता है
ਬਿਲੀਬਰਡਾਈਨ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, ਬਿਲੀਬਰਡਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਨੂੰ ग्रीन कलर देना, और ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? येलो कलर देना। और ये दोनों किस दे नष्ट होने नाल बनते हैं? RBC के नष्ट होने नाल बनते हैं। इस तो बाद की है जी, बाइल जूस नूं स्टिकी और फ्लूइड यानी कि चिपचिपा द्रव किस दे करके हुंदा है? तो कोलेस्ट्रोल दे करके हुंदा है। एक चीज़ और तुसी याद रखनी है, हुण देखो स्टूडेंट, अगर बाइल जूस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बाइल जूस की मात्रा ज़्यादा होएगी तो की होएगा? कोलेस्ट्रोल की मात्रा भी ज़्यादा होएगी। और अगर कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो साडी बॉडी दे विच किसका खतरा रहता है? हार्ट अटैक का। हुण क्वेश्चन की आएगा, बाइल जूस की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो की होएगा? कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज़्यादा, और कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज़्यादा तो हार्ट अटैक का खतरा। हाँ जी, इस तो बाद देखो जी, मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखो स्टूडेंट, कंसैप्ट के उपर जोर देना है, सारा ही एक दूसरे के नाल कनैक्ट है। हाँ जी, हुण आपां देखिए जी, अगर बिलीरूबिन अते बिलीबरडाइन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हाँ जी, किसकी मात्रा? बिलीबरडाइन अते बिलीरूबिन की जो मात्रा ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब की होएगा कि जो RBC हैं ये की हैं जी ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि इत्थे आपां देखिया RBC के नष्ट होने नाल की बनिया? RBC के नष्ट होने दे नाल बनिया बिलीबरडाइन और बिलीरूबिन। तो बिलीरूबिन और बिलीबरडाइन की मात्रा ज़्यादा होने का मतलब है जी RBC ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं। हाँ जी, RBC ज़्यादा नष्ट होने दे नाल की होएगा? लीवर सही तरीके दे नाल काम नहीं करेगा। और अगर लीवर सही तरीके दे नाल काम नहीं करेगा और बिलीबरडाइन और बिलीरूबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो अपनी स्किन का कलर किहड़ा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जी ग्रीन एंड येलो। हाँ जी, और इसनूं ही की बोलिया जाता है? जॉन्डिस बोलिया जाता है, या फिर किहड़ा रोग हुंदा है? पीलिया रोग हुंदा है। आई होप ये पॉइंट तुहानूं क्लीयर होया। जदों इसका ट्रीटमेंट सही तरीके नाल नहीं हुंदा और जॉन्डिस ही किसका रूप ले लैंदा है? हैपेटाइटिस दा। हाँ जी, हुण एग्जाम दे विच क्वेश्चन की बनेगा स्टूडेंट? जॉन्डिस दे होण दा कारण की है? साडी बॉडी दे विच RBC का नष्ट होना, साडी बॉडी दे विच बिलीरूबिन और बिलीबरडाइन की मात्रा का ज़्यादा होना। हाँ जी, और जॉन्डिस किस दा रूप ले लैंदा है? हैपेटाइटिस दा। और इंडिया दे विच किहड़ा हैपेटाइटिस हुंदा है? तो हैपेटाइटिस B हुंदा है। इस तो बाद देखो जी, इत्थे आपां एक पॉइंट और देखिया, जो कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल का काम की हुंदा है? अपने बाइल जूस नूं चिपचिपा द्रव बनाना। बाइल जूस का पीला रंग बिलीरूबिन द्वारा हुंदा है, बाइल जूस का हरा रंग किस दे द्वारा हुंदा है? बिलीबरडाइन दे विच हुंदा है। स्टूडेंट, अगर तुहानूं वीडियो पसंद आ रही है तो इसनूं लाइक करना है, ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना है। अगर तुसी साडी इस वीडियो नूं लाइक और शेयर करते हो, इस दे नाल ही की है जी, सानूं मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन अगर सानूं मिलेगी तो इसका बेनीफिट तुहानूं भी होएगा। तुहाडे लई बेस्ट डाटा लैके आवांगे। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, एक तुसी अक्सर सुनिया होएगा पत्थरी दे बारे। हाँ जी, पत्थरी बहुत परसन दे विच आम अक्सर देखने नूं पाया जाता है कि पत्थरी है, बट आई होप किसी नूं भी ज़्यादा इस दे बारे क्लीयर नहीं होएगा। हाँ जी, तो तुहानूं की है इस वीडियो दे विच काफ़ी नॉलेज मिलेगी। हाँ जी, ठीक है जी। देखो हुण आपां देखते हैं पत्थरी की हुंदी है। आपां पहले स्ट्रक्चर देखिया, इत्थे अपना स्टमक हुंदा है, इत्थे की है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैन की है पैनक्रिया, गोल ब्लैडर यानी कि पित्ता, और जिगर। हुण एक चीज़ देखो ध्यान देना स्टूडेंट, अपना जिगर की करता है? अपना जिगर का काम हुंदा है बाइल जूस नूं निकालना। हाँ जी, तो अपना जिगर की करेगा? बाइल जूस बनाएगा, पर गोल ब्लैडर जो पित्ता हुंदा है एक ही है जी, इस विच स्टोर ना होने करके। हाँ जी, ध्यान दे नाल देखना है जी। लाइन पहला देखो, बाइल जूस बनाएगा, की बनाएगा? कौन बनाएगा? जिगर बनाएगा। तो जिगर ने की बनाया? बाइल जूस बनाया। हाँ जी, पर गोल ब्लैडर दे विच की है? ये स्टोर नहीं होया। तो स्टोर ना होने करके की हुंदा है जी? फैट का पाचन नहीं हुंदा। हाँ जी, ध्यान दे नाल देखो स्टूडेंट, हुण एक क्वेश्चन की हुंदा आएगा कि फैट का पाचन या फैट का सही पाचन किस करके नहीं हुंदा? तो जदों अपनी बॉडी दे विच की है जी? स्टोन यानी कि पत्थरी बन जाती है। कहने का मतलब की है जी? जिगर यानी कि लीवर ने की करिया? बाइल जूस निकालिया, बट इसने स्टोर कित्थे जाके होना है? गोल ब्लैडर दे विच होना है, बट गोल ब्लैडर दे विच की है? स्टोन यानी कि पत्थरी है, जिसकी वजह करके की है इत्थे स्टोर नहीं होया, और स्टोर ना होने करके किसका पाचन करन दे विच प्रॉब्लम आई? फैट दा।
ਹੁਣ देखो जी अपने पित्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਜ਼ਲੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ किस का निर्माण होता है स्टोन यानी कि पत्थरी का निर्माण होता है। और जो कैल्शियम ऑक्जलेट है इसका काम की होता है तो देखो जी जो क्लोथ होता है जो लॉन्ड्री वाले होंगे हैं क्लोथ तो दाग हटाने के लिए किस का निर्माण करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जलेट का यूज़ करते हैं। हाँ जी, अगर आप गल करते हैं कैल्शियम ऑक्जलेट किस तरह बनता है तो अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ऑक्जैलिक एसिड ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਇਸ ऑक्जैलिक एसिड ਦਾ ਪਾਚਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ कैल्शियम ऑक्जलेट। और कैल्शियम ऑक्जलेट ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ स्टोन बनेगी यानी कि पत्थरी बनेगी। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ऑक्जैलिक एसिड अपनी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ देखो जी मैक्सिमम जो पालक है पालक खान ਦੇ ਨਾਲ टमाटर अमरूद या फिर जो भिंडी है इसनों ज़्यादा खाण दे नाल की है जी ऑक्जैलिक एसिड बनता है। और कई बार अपनी बॉडी दे विच ऑक्जैलिक एसिड का सही डाइजैशन यानी कि पाचन नहीं होंदा जिसकी वजह करके की बनया कैल्शियम ऑक्जलेट। कैल्शियम ऑक्जलेट ने की बनाई पत्थरी बनाई स्टोन बनाई। और स्टोन करके की होया बाइल जूस इस दे विच स्टोर नहीं होया। और अगर स्टोर नहीं होएगा तो किस दा पाचन करने दे विच प्रॉब्लम होएगी फैट का पाचन करने विच प्रॉब्लम होएगी। दो चीज़ां याद रखनियां हन बाइल जूस किसने बनाया लीवर ने बनाया और स्टोर कित्ते हुंदा है पित्ते दे विच हुंदा है। हुण इत्थे मैं एक नोट करके एक पॉइंट लिखिया है अगर बॉडी विच स्टोन बन जाए तो किस दा पाचन करन सही तरीके नाल नहीं हुंदा आपां देखिया फैट दे नाल। स्टोन का इलाज की हुंदा है तो स्टोन का इलाज हुंदा है इंडोस्कोपी। हाँ जी, की हुंदा है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी दे विच की हुंदा है जो स्टोन है उसनूं छोटे छोटे पार्ट दे विच तोड़ दिता जाता है जिस दे विच की है जी वो बाद दे विच की है बाहर आ जाती है। हाँ जी, पर की है जी जे स्टोन वड्डी होए तो फिर की होएगा स्टोन वड्डी होए तो गोल ब्लैडर की है जी फट सकता है। हाँ जी, बट अगर गोल ब्लैडर फट जाता है तो इंसान की है जी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए की है अगर स्टोन का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो पित्ते नूं की है जी डायरैक्ट ही निकाल दिता जाता है। और जिगर तो एक पाइप कित्थे अटैच कर दी जाती है तो ये कर दी जाएगी अपने स्टमक वाली साइड पर। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी है। हुण अपने लैक्चर का लास्ट पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन जिसनों आपां वड्डी आंदर कहते हैं इस दे 3 पार्ट हैं। एक है जी सीकम, सैकेंड पार्ट है कोलन और थर्ड पार्ट है जी रैक्टम। एक चीज़ जो तुसी इत्थों याद रखनी है हाँ जी वो की है जी देखो एक क्वेश्चन आता है लार्ज इंटेस्टाइन किस दा पाचन करती है तो देखो जी तुसी की याद रखना है जल दा की करती है अवशोषण करती है। ये चीज़ तुसी पहला याद रखनी है। हुण देखो जी इसके 3 पार्ट हैं सीकम कोलन और रैक्टम। सीकम का काम की हुंदा है तो सीकम का काम हुंदा है समॉल इंटेस्टाइन नूं लार्ज इंटेस्टाइन दे नाल जोड़ना। जिस तरह आपां देखिया स्टमक नूं समॉल इंटेस्टाइन दे नाल किसने जोड़िया तो आपां देखिया डुडेनम ने। उस तरह ही छोटी आंत नूं वड्डी आंदर दे नाल कौन जोड़ेगा तो सीकम जोड़ेगा। और इसका काम की हुंदा है देखो समॉल इंटेस्टाइन दे विच अपने खाने का पूरी तरह पाचन हो गया मैक्सीमम जो डाइजैशन है कित्थे होया समॉल इंटेस्टाइन। उस तो बाद खाना की हो जाता है वेस्ट फूड बन जाता है। उस वेस्ट फूड नूं कोलन तक पहुँचाने का काम किसदा हुंदा है तो हुंदा है जी सीकम का। उस तो बाद आपां देख लैंदे हाँ कोलन। कोलन का काम की हुंदा है जो जल हुंदा है उसका अवशोषण करना। हुण क्वेश्चन क्या आएगा जल का अवशोषण जो कोलन द्वारा कराया जाता है हाँ जी किस दी मदद करके हुंदा है। देखो इस दे विच एक इंपोर्टेंट बैक्टीरिया हुंदा है जिसका तुसीं नाम याद रखना है ई कोलाई बैक्टीरिया। लास्ट टाइम काफ़ी बार इस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है। तो कोलन दे विच की हुंदा है ई कोलाई बैक्टीरिया हुंदा है जो की करता है जल का अवशोषण करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ई कोलाई बैक्टीरिया ना होए यानी कि गैर हाजिर होए तो की हुंदा है जो वाटर है वाटर प्लस जो वेस्ट फूड है ये रैक्टम के थ्रू की है बाहर आएगा। हाँ जी, तो इस दे नाल ही एक बीमारी हुंदी है की हुंदी है जी लूज मोशन यानी कि दस्त। हाँ जी, हुण क्वेश्चन की आंदा है जब लूज मोशन या दस्त लगते हैं इसका कारण की हुंदा है ई कोलाई बैक्टीरिया दी ना होने करके की हुंदा है वाटर का अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण नहीं होता जिसकी वजह करके वाटर प्लस फूड रैक्टम के थ्रू बाहर आते हैं जिसनों ही लूज मोशन यानी कि दस्त कहा जाता है। इस तो बाद है जी रैक्टम। रैक्टम का काम की होंदा है तो रैक्टम का काम होंदा है जो वेस्ट फूड है उसनों एनस या गुदा द्वार के द्वारा बॉडी तो एग्जिट करना। हाँ जी स्टूडेंट,
मेरे वालों जिन्ना भी बेस्ट डाटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा अपने WhatsApp ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ इंस्टाग्राम लिंक ਤੇ, ਆਪਣੇ फेसबुक ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, और अगर तुसी साड़ियाँ पुरानियाँ वीडियो नहीं देखिया हैं तो वह भी सारिया वीडियो देखनिया हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी का कंसैप्ट है ये अटैच है एक दूसरे के नाल, सारे ही चैप्टर इंपोर्टेंट हैं। मैं तुहानू प्रॉमिस करता हाँ अगर तुसी साडे चैनल के नाल प्रॉपर जुड़े हो तो तुहाडा कोई भी सबजैक्ट है, हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनमी, साइंस या फिर जो भी मिसलीनियस पॉइंट होंदा है, हाँ जी, वो सारे ही बहुत ही वधिया तरीके नाल कवर अप करे जाएंगे। अज दे लैक्चर दे विच इन्ना ही।